Now, what is list methods and built-in function? The data type list has several built-in methods that are useful in programming. So now we will use all the built-in functions, ready-made functions, library functions for list manipulation. So first one will be len. Now length of the list name we will give as argument, returns the length of the list passed as the argument. So whichever is passed as argument in this round bracket or parenthesis, it will return the length of that list. Suppose list 1 is 10, 20, 30, 40, 50, and if you are writing here len of list, it will count how many elements are there, 1, 2, 3, 4, 5, and it will print 5. So these type of questions are given in the output. Write the output in without MCQ. Also some questions are there where you have to only type the output. So this type of questions are there. Next, list is used to convert into a list. It can be you can convert a string, or you can, whatever you want, you can convert it. Now if you use only list, then an empty list will be created. So only list without any argument, if you are using without anything inside this bracket, then creates an empty list if no argument is passed. So here it is creating an empty list. Now if you pass an argument, creates a list if the sequence is passed as argument. Like here string, I have taken AEIOU and I am passing this string as argument. So here it will convert it into a list of characters, of vowels. Next is append, which adds at the end. So appends a single element passed as an argument at the end of the list. So if I will write now this one, next year also it is asked, append, extend, insert. These question in board exam is also asked. So just try to understand what is append. Append will add an element at the end of the list, or append will add a list at the end of the list. So it adds at the end. Now here, if the list is having 10, 20, 30, 40, and if you have given append list 1, in list 1 you have to append 50. So I have written list 1 dot append in round bracket 50. So when now you will print list 1, it is showing here 10, 20, 30, 40, 50. And if you are asked to append a second list with the first list, then what will happen? It will act as a nested list. That is one list inside another list. So you can use append method to add an element or to add a existing list, to add a list with an existing list. Next is your extend. Now what is extend? You can see here when I was adding using append, then 50 and 60 was in square bracket. So it was a nested list. Separately you can access it. But I want to use a second list, means first list, I want to extend it with the second list. That is, all the values will be part and indexes will be separate, so I can access it. Here also I can access it, but it was a nested list. But here you can see it is not a nested list, this 40 and 50. Appends each element of the list passed as argument at the end of the given list. So here elements are added, not the complete list is added like this. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि अपेंड और एक्सटेंड का अगर डिफरेंस पूछेंगे तो ये बोलना पड़ेगा कि ये लिस्ट फॉर्म में उसमें अपेंड हो रहा था और एक्सटेंड में उसके एक एक एलिमेंट्स को हमने इसमें डाल दिया है. अपेंड ही कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक एक एलिमेंट को डाल दिए, तो ये नेस्टेड लिस्ट नहीं बन रहा है इसमें. नेक्स्ट, इंसर्ट. इंसर्ट्स एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट. अगर मेरे को यहाँ पे 2 पोजीशन पे या 20 के बाद 25 डालना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट 2,25 लिखूँगी. तो इसमें क्या होगा, 25 के बाद 20 के बाद 25 आ जाएगा. सो दिस इज, जैसे तुम लोग का रोल नंबर सपोज अरेंज्ड है, अब मेरे को बीच में एक रोल नंबर, एक नेम को डालना है. नेम्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर and I want to insert an element that is a student with a particular index. Means वो mention है कि you have to arrange all the names in alphabetical order only. So I will find out the index position, where to insert, and then I will write here, see the syntax.
in which list, that name is given, function method is used, which position, this is the index position, 2 is 0, 1, 2. Actually it will be after the second element it will be inserted, and which element, 25. So here 0, 1, 2 into, you will see 25 now. Clear? And if it is 0, then the first one will become 100, like the last. Okay, now count will count how many, suppose 10 you are writing, then how many 10s are present in the list. If you are writing 90, then none of, in this list, no 90s. So in list 1, it will count how many times this element is present. Then find will find the index here. So here normally this is index of 20 it is returning. They have given here index, they haven't. Okay, this I will show you practically. When I will do it practically, I will show it. Here index they have written, so index of 20 will be 0, 1, and if it is out of range, like 90 is not there, so value error. Now errors you can see, B is capital, E is capital. Because in board exam, type error, key error, value error, syntax error, these type of questions are asked. So the words first letter is capital. Okay, the errors will be MCQ, so by seeing it you can understand it. So you will remember that these words first letter will be capital. If it is type error, T will be capital, E will be capital. So this I will show you practically, find one. Now remove any element. If you are asked to remove from the list, like 30 you want to remove, then it will remove the list from the list and it will display. Now here you can see, when I am removing 30, the first 30 it is removing. The first, wherever this occurrence is there, it will remove. And where the element is not present, it is showing value error. Now pop by default deletes the last element, and if you want to mention the index position, then it will remove that element. So in remove, the element is used which is to be removed, whereas in pop the index position is used which is to be removed, like 0, 1, 2, 3. ठीक है, तो 3 इंडेक्स पोजीशन किसका है, 40 का है, तो 40 डिलीट होगा और यहाँ पे दिखाएगा विच एलिमेंट इज बीइंग डिलीटेड. उसके बाद जब लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो 40 को नहीं डिस्प्ले कर रहा है, 10 से लेके ये 60 तक डिस्प्ले कर रहा है. एंड इफ़ यू डोंट मेंशन एनी आर्ग्यूमेंट, पॉप खाली पॉप लिख दोगे तो उसमें हमेशा लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है. तो यहाँ पे 60 डिलीट होगा, लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो 60 नहीं रहेगा. नाउ रिवर्स. नाउ one question will come to reverse the elements of the list. So some students are using list, the name of the list in square bracket colon colon -1. The second method is using the reverse function. ठीक है, लिस्ट के साथ हम रिवर्स फंक्शन मेथड को यूज करेंगे. तो ये पूरे लिस्ट का रिवर्स करके, जैसे इसमें टाइगर फर्स्ट था, डॉग लास्ट था, जब हमने रिवर्स कर दिया उसी लिस्ट में हमने रिवर्स कर दिया तो डॉग फर्स्ट आ गया, टाइगर लास्ट आ गया. नेक्स्ट, सॉर्ट करने से अल्फ़ाबेटिकली या अगर नंबर्स होते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे सॉर्ट लिखा हुआ है तो इसमें स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या करेगा, वो ABCD करके अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट लेटर को वो चेक करेगा. अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकेंड लेटर को चेक करेगा और वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देगा. अगर यहाँ पे नंबर्स होते तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट कर देगा. नेक्स्ट, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आता है एग्ज़ाम में, ये वाला क्वेश्चन आता है एनुअल एग्ज़ाम में, सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे लिखते हैं हम, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली आता है, पूछा जाता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट करने का क्या सिंटैक्स है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी लिस्ट का नाम दिया रहेगा, सपोज सारे नेम्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट के नेम्स, और बोला गया या फिर मार्क्स दिए गए हैं और बोला गया है कि रैंक वाइज मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट, जिस स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स मिला है उसको टॉप में डालो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या लिखेंगे, सपोज लिस्ट का नाम मार्क्स दिया है तो मार्क्स डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू.
तो ये डिसेंडिंग, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। नेक्स्ट सॉर्टेड। सॉर्टेड में क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो लिस्ट है उसको सॉर्ट करके हम एक दूसरे लिस्ट में सेव कर सकते हैं। तो उसमें बाद में हम उस लिस्ट को सॉर्टेड मीन्स ओरिजिनल लिस्ट इसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा था कि ओरिजिनल लिस्ट में वो सॉर्ट होके सेव हो रहा था, बट आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय ओरिजिनल लिस्ट। सपोज मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के तुम लोग का डेटा है and I want to show you the rank. So I want to sort in descending order of marks and I want to put rank. So I will not disturb my original file. So this I will not use. I will use sorted and I will store in a separate list. Then I can give you the rank. तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। नॉर्मली हम खाली sorted लिख देते हैं तो ये पूरा ascending order में अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें खाली असेंडिंग ऑर्डर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट मिन, मैक्स और सम, ये सबको पता है। इसको लिखने का तरीका कैसे है, मिन इन ब्रैकेट में लिस्ट, मैक्स इन ब्रैकेट लिस्ट और द आर्ग्यूमेंट वॉट एवर इट इज, सम इन ब्रैकेट। नाउ दीज 3 क्वेश्चंस वी विल यूज नाउ इन आवर प्रोग्राम। लाइक if you are asked to display the minimum value of a list, maximum value of a list और द टोटल सम, जैसे बिल बना रहे हो तो लिस्ट में डालते जा रहे हो, तुम्हारा बिलिंग हो रहा है, लास्ट में सम करके हमको टोटल बिल कैलकुलेट करना है, तो हम सम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। ये सब अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जब, या प्रोग्राम्स जब अभी लिखेंगे उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हो गए लिस्ट के। नेक्स्ट मैनिपुलेशन, लिस्ट के कोई भी एलिमेंट को अगर चेंज करना है, देन अपेंड करना, ऐड करना है, इंसर्ट करना है, देन अपेंड अ लिस्ट टू अ गिवन लिस्ट, मॉडिफाई, ये जो अभी हम लोगों ने जितने फंक्शंस पढ़े हैं उसको यूज़ करके अभी हम ये प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे अपेंड एन एलिमेंट बोलेंगे वहाँ लिस्ट का नाम लिख के, सपोज माई लिस्ट है तो माई लिस्ट डॉट अपेंड और ब्रैकेट पे एलिमेंट हो जाएगा। इंसर्ट एन एलिमेंट में कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करना है, किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, 2 वेरिएबल्स यू विल टेक, फिर लिस्ट का नाम लिख के डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में उसका पहले पोजीशन जो रहेगा कॉमा एलिमेंट जो रहेगा, देन अपेंड अ लिस्ट, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, डिलीटिंग। तो ये अभी हम लोग एक एक करके प्रोग्राम्स को, सारे प्रोग्राम्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम दिया हुआ है, आंसर ये दिया हुआ है। तो मेनू ड्रिवन, जब मेनू सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 सिलेक्ट कर रहे हैं तो अपेंड हो रहा है, 2 सिलेक्ट कर रहे हैं तो वैल्यूज़ जो इंसर्टिंग। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये तुम्हारा मेनू आ गया, लिस्ट ऑपरेशन का पूरा मेनू, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी में लिस्ट का जो प्रोग्राम लिखोगे उसमें ये लिखना ही है, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अपेंड, इंसर्ट, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ लिस्ट, सॉर्टिंग, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को और उसके आंसर्स को, ये उसका आउटपुट दिया हुआ है, कैसे काम कर रहा है, इसको समझ के एक बार नोट डाउन कर लोगे प्रैक्टिकल कॉपी में। इवन इन कंप्यूटर ऑल्सो ट्राई टू execute and show the output. So I will show you 1 or 2 programs now. Yes, now we were accessing, slicing, we were checking. So we will do each operation. So first was a list 2 you have taken, directly assigned these values using square bracket. List 3 using eval you have taken from the user. And now you are printing how many names, total number of names, that is how many names user has entered. So using len list 3. So here question was how many names user, so comment you can write the question, using hash you can write the comments. So total number of names or total names. Now if your question is to display the first name, now how you will display the first name? Start giving your answers. Jaldi. For accessing we will use the index position. Positive index, negative index.
Clear? Positive index will be 0, 1, 2, 3, 4. Negative index will be -1, -2, -3, -4, -5. So first element, whenever we want to access, then we use either 0 we can use, or minus of the length of the list. So here we can, the second method is to display the first name. I can use either list3 0, or I can use here, now len of list3 -1 I can use here. So I can store the len of list3 in a variable also. I suppose a is a variable and I am storing the length of the list3. list3 में कितने नाम्स यूजर ने एंटर किया है, that we don't know. So a -1 or n -1. n if we are writing here, then n -1. Yes, now when I will execute it, you can see here, enter this line, it is showing enter names. Now I am entering some name here, suppose short names I am entering, Ria, first name. Now when you are entering the name, if you don't put a square bracket, by default it will make a tuple. So for list you have to use square brackets. So here I am entering the names. 3 names I have entered. Now when I will press enter, first thing is total number of names 3 it is showing. Now, okay, what mistake I have made? Anybody? This is your first name and this is your last name. Your first name is so this is your last name. Last name is, and this is your first name. 0 first index, so first name is. But what I actually wanted was, हाँ बोलो, मेरे को फर्स्ट नेम आपने वहाँ लिस्ट थी, हाँ हेलो, लेन में मैंने आपने वहाँ लिस्ट ईमेल क्यों लिखा है? कौन सा? वो जो लिस्ट 3 इज इक्वल्स टू है ना, वहाँ पे इनपुट के पहले इवेल क्यों लिखा है? हाँ, एंटर नेम्स में इवैल से ना, इवैल एक फंक्शन है पाइथन का, जिससे हम लोग लिस्ट, टपल, मल्टीपल वैल्यूज को हम यूजर से ले सकते हैं. अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि इंट करके हम एक इंटीजर वैल्यू को लेते थे, फिर फ्लोट करके हम एक फ्लोट वैल्यू को, इनपुट करके हम स्ट्रिंग को लेते थे. अब हमको हेट्रोजीनियस में मिक्स्ड वैल्यू लेना है. मिक्स्ड वैल्यू लेके हमको किस में स्टोर करना है, या तो लिस्ट में या टपल में स्टोर करना है. तो उसके लिए हम मिक्स्ड वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज़ लेने के लिए हम इवैल फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं. अगर हम कुछ खाली मल्टीपल वैल्यूज़ को लिख देंगे तो वो, जैसे मैं यहाँ पे खाली मल्टीपल वैल्यूज़ को, रुको इसको मैं एक बार कर लूँ फिर डिस्प्ले करती हूँ. खाली मल्टीपल वैल्यूज़ को जब मैं लिखूँगी इनपुट में स्क्वायर ब्रैकेट दिए बिना, तो वो राउंड ब्रैकेट टपल दिखाएगा. लेकिन जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालूँगी तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, तो यहाँ पे जब भी मल्टीपल वैल्यूज़, जैसे मेरे को यहाँ पे 3 नाम लेने थे, और इसमें मैं मिक्स्ड भी लिख सकती हूँ. एक इंटीजर, सपोज अभी मैं अगर एक प्रोग्राम लिखने जा रही हूँ जिसमें स्टूडेंट्स का पूरा डेटा, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, सीबीएसई डेटा, सपोज सीबीएसई डेटा मेरे को भेजना है. ठीक है, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रोजेक्ट बना रहे हो तुम एक, कि पाइथन को यूज़ करके तुम सीबीएसई रजिस्ट्रेशन करा रहे हो. अब उसमें क्या है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है. सपोज़ उसमें सैलरी, एनुअल सैलरी डालना है, फ्लोट में डालना है. सपोज़ इंटीजर में हमको उसमें एडमिशन नंबर डालना है, या फिर हमको उसमें स्ट्रिंग डालना है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम. तो ये मिक्स डेटा है. ठीक है, तो उसके लिए हम ये लिस्ट या टपल यूज़ करेंगे. लिस्ट म्यूटेबल होता है, इसलिए प्रोजेक्ट में हम ज़्यादातर लिस्ट यूज़ करते हैं. हाँ, जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए कि डेटा चेंज ना हो,
वहाँ पे तुम टपल यूज़ करोगे क्योंकि उसके वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये एंटर नेम्स, ये इवैल से क्या कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज़ ले रहा है। तो यहाँ पे एंटर नेम्स लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे नेम्स डाल दिए। सपोज़ कोई भी नेम डाल दे रहे हैं, एक ए डाल दिया, एक बी से नाम डाल दिया, सी से नाम डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब हम एंटर कर रहे हैं तो 3 नाम है, तो ये तो पहले इसने दिखा दिया, टोटल नंबर ऑफ नेम्स 3। फिर फर्स्ट नेम ए है, लास्ट नेम सी है। हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे थे, फर्स्ट नेम को ही सेकेंड मेथड से डिस्प्ले कर रहे थे और हमने यहाँ पे n-1 लिख दिया था। तो ये हमारा एक मिस्टेक हो गया था एक्चुअली में। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम एक लाइन लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम ही डिस्प्ले कराना है, लेकिन इसमें हमको रिवर्स या फिर नेगेटिव इंडेक्स डालना है। तो नेगेटिव इंडेक्स फर्स्ट का क्या होता है, कितना होता है, एनीवन? -5 होगा। हाँ, लेंथ n है तो -n होगा, ठीक है, स्मॉल में -n होगा। अब जब हम फिर से डिस्प्ले करा रहे हैं तो ये 2 बार दिखाएगा, अरे फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है, 2 नाम डाल देते हैं अभी। तो यहाँ पे हम खाली a डाल दे रहे हैं और b डाल दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट नेम इज, देखो अब फर्स्ट नेम 2 तरीके से हमने डिस्प्ले कराया, एक हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का 0 लेके और एक हमने रिवर्स इंडेक्सिंग। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू और नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। जो भी एलिमेंट रहेगा हमारा, कोई भी स्ट्रिंग रहेगा, कोई भी एलिमेंट रहेगा, सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट कंप्यूटर डाल देते हैं, COMPUTER। अब इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जब करेंगे तो 0 से स्टार्ट करके फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 रहेगा, लास्ट एलिमेंट जो भी उसका लेंथ है वो, सपोज लेंथ को मैं अगर n ले रही हूँ तो n-1 लिखेंगे इसमें। यहाँ पे रिवर्स इंडेक्सिंग में -1 से स्टार्ट होगा और ये लास्ट वाला -n होगा, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट को हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट नाम जब दिया जाएगा, या तो तुम इसमें लिस्ट, जो भी लिस्ट का नाम रहेगा उसमें 0 डाल दोगे फर्स्ट, या फिर -n डाल दोगे तो भी फर्स्ट। अब लास्ट को डिस्प्ले कराने का सेकेंड मेथड क्या है, लास्ट को डिस्प्ले कराने का सेकेंड मेथड क्या होगा बताओ? एक मेथड 4 लिख देंगे। हाँ, लास्ट एलिमेंट के लिए, ये इसका नाम का रिवर्स इंडेक्सिंग में राइट हैंड साइड से कैसे स्टार्ट होता है, पहला कौन सा होता है राइट हैंड साइड से? -1। ठीक है, जब रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं तो राइट हैंड साइड से जब शुरू करते हैं तब -1 से लेके -2, -3, -4, लास्ट एलिमेंट -n होता है। तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे तो वो जो भी लास्ट नाम है वो डिस्प्ले कराएगा। रन करा के देख लो। सपोज इसमें मैंने एक ए दिया, अच्छा इसमें हम लोग नाम बोला गया है तो स्ट्रिंग को तो सिंगल कोट्स में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग A B C D स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसमें देखो 2 तरीके से हमने फर्स्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराया, 2 तरीके से हमने 2 methods you have used to display the last element of a list. Same in a tuple, in a string, same method you can use, because in all this indexing is same, accessing is same, slicing is same, in string, in list, in tuple, all are having the same methods, ठीक है। तो इसमें अगर नाम है, स्ट्रिंग है, तो उसका भी पहला कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग का नाम, उसमें भी 0 डालेंगे, या फिर उसमें भी हम -n डालेंगे तो पहला आ जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग को अच्छे से समझ लो, स्लाइसिंग को अच्छे से समझ लो।
इसमें तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है, तुम लोग का जो एनसीईआरटी बुक है, इसके बाद मैं एक 11th कंप्यूटर साइंस का एक एनसीईआरटी बुक मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। उसमें उन्होंने पूरा ब्लॉक बना के एक्सप्लेनेशन उसका और डिटेल में है, क्योंकि स्लाइसिंग और एक्सेसिंग इंडेक्सिंग ये तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए भी, ठीक है। तो इसको हम लोग और 2-3 क्लास और इसको अच्छे से करेंगे। इसमें 11 CS का जो बुक एनसीईआरटी आज मैं शेयर करूँगी तुम लोगों के साथ, उसको अच्छे से देखना। उसमें टेबल बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो तुम्हारे बुक को मैं वो कर रही थी, तुम्हारे बुक में सीधे प्रोग्राम्स में आ गए हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसका और